وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ نعمتیں بخشی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. اگر یہ نعمت نہ ہو تو پوری دنیا بھی کسی کے پاس جو ہو نہیں سکتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، تو وہ بیکار ہے. میں یہ دیکھا ہوں اپنی اس آرگنائزیشن میں کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ میدان عمل میں ہم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہیں. ہمارے اس آرگنائزیشن میں جس کا تذکرہ آپ نے کیا، بہنوں کے لیے باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ، اور ڈپارٹمنٹ نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ایکٹیویٹیز کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ سسٹرز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آگے بڑھ گیا. آپ نام لیں اور ان کے پاس وہ موجود تھا، اور یہاں تک کہ اسپورٹس تک میں بھی وہی اپنے ڈریس میں، اپنے اس میں بالکل سپریٹ مکمل آفس چلانا، تمام چیزیں جو ہیں ان کے پاس موجود تھیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک طرح سے ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، خاص طور سے مسلمان کے جینڈر ڈیفرنس والی بات جو ہے وہ کریٹڈ ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے. جیسا کہ میں طالب علم ہوں کرسچینٹی اور دوسرے ریلیجنس جو بھی ہیں اس کا، تو مسئلہ ان کے یہاں ہے. ان کے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے یہاں یہ ہے کہ عیسائیت میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، یا مجھے نہیں معلوم کہ معلوم ہوگا، ان کے یہاں خاص طور سے کیتھولک کے یہاں ان کے دو، تو ان کے یہاں تو چرچ میں بھی داخلہ نہیں ہے. صحیح معنوں میں کوئی پریسٹ نہیں بن سکتی. اب آہستہ آہستہ موڈیفیکیشن کر رہے ہیں، نئے حساب سے دین میں موڈیفیکیشن ہو جاتا ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ یورپ میں اس ٹائم تو امریکہ کا شاید وجود بھی نہیں تھا، تو وجود تو تھا، یعنی ڈسکور نہیں ہوا تھا یہ خود. تو یورپ میں اس بات پر بحث ہوتی تھی عیسائیوں کے درمیان کہ آیا عورت کے اندر روح ہے یا نہیں ہے. ڈو دے ہیو اسپرٹ ریئلی؟ یہ سوال تھا. اب جب یہی مسئلہ ہے تو اس سے آگے کے حقوق تو کیا ہوں گے پھر؟ کئی ملکوں میں جو آج آپ کو حقوق انسانی کے، ہیومن رائٹس کے اور ویمن رائٹس کے، نہ جانے کس کے جو ہے اپنے آپ کو لیڈر بتاتے ہیں، ان کے ہاں یہ تھا کہ چڑیل کہہ کر، وچ کہہ کر ہزاروں عورتوں کو جو ہے پھانسی دے دی گئی، زندہ جلا دیا گیا. اور آج بھی تو یہ تو ان کی کنڈیشن ہے. یہاں پر یہ تھا کہ جو مذہب یہاں پہ پریویلنٹ تھا ہمارے انڈیا میں، اس کے یہاں شودر، یعنی جو بالکل ڈاؤن ٹروڈن انٹچبل جو ہیں، وہ اور ویمن دونوں کو برابر. تو درجہ جو ہے وہ ہمیشہ اسلام نے دیا ہے. آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس حد تک اور کس انداز سے اسلام نے جو ہے عورت کو حقوق دیے ہیں اور اس کو اونچا اٹھایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اس ٹائم کا، خاص طور سے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی میل فیمیل ریلیشنز یا جو ہے فیملی، جو بھی اس سے متعلقات ہیں، اس کے بارے میں کیا بہت سارے پولیٹیکل پرابلمز، یہ سب وہ تو سب رہے. کیا آپ تھوڑا گائیڈ کر سکتی ہیں؟ تاکہ میں اسی حساب سے جو ہے یہ آج وہ لیکچر دے کے تو لوگ بہت چلے جاتے ہیں. میرے سے لیکچر دینا آتا بھی نہیں، صرف جو ہے دل کی باتیں کر لیتا ہوں. جنرلی پرابلم ہے انٹرپرینور ہو، ٹیچر ہو، جو بھی پرابلم فیس کرتی ہے، میل ڈومیننس زیادہ ہے سوسائٹی میں. لیگل فارمیلٹیز کے بارے میں جو نہیں پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لیک آف می ٹائم ہے خود کے لیے وقت نہیں، مطلب بچوں پریوار کو دیکھنے پہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ ورک لائف بیلنس
मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, तो बीच में बच्चे को भी तरबियत देनी पड़ती है और बाहर के भी काम को तवज्जो देना पड़ता है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता है, वो एक प्रॉब्लम फेस आती है आपको। तो और इसके साथ ही साथ तो ये जो बाहर की जिम्मेदारी है किसने दी है? खैर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये मैं नहीं कहता, बल्कि जितने दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इस टाइम पर जो सही मानों में अपने मजहब को नाफिज करना चाहते हैं, और मैंने एक बहुत बड़ा पादरी था ऑर्थोडॉक्स का, जो रशिया में होते हैं, रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, तो उसने प्रैक्टिकली तकरीबन रोकर ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें हमारा फैमिली सिस्टम वापस दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फैमिली सिस्टम जो है वो दुनिया में खत्म हो रहा है, और फैमिली सिस्टम के ऊपर जो है वो हमला है किसका? अथीस्ट्स का, उन लोगों का कि जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं। ऐसा हमला है और ये ऐसी चीज है कि जिससे सब कुछ खत्म हो सकता है। यूरोप अमेरिका उनका तो मसला खत्म हो गया है, 50% लोगों को नहीं पता है कि उनके फादर कौन है, लेकिन इस्लाम बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में अभी रेजिस्टेंस करने वाले लोग मौजूद हैं, मगर कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहे हैं इस चीज से। और ये मसला बड़ा क्यों है? दलाइल भी मौजूद है, बहुत सारे प्रूफ्स हैं उसके। इतना बड़ा मसला है कि शैतान किस चीज से खुश होता है? वो अपने वो हदीस सुनी है कि जिसमें जो है शैतान अपने चेलों को बुलाता है और किस चीज से खुश होता है? झगड़ा करने। जादूगर का काम क्या है? युफर्रिकून बैनल मर्इ व ज़ौजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, यहां से जो है पूरा सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर फैमिली सिस्टम खत्म हो गया और जो इस्लाम ने सिस्टम दिया था वो सिस्टम खत्म हो गया तो सारा मसला गड़बड़ हो जाएगा। इसके ऊपर जो है फुल मेहनत हो रही है, और बात ये कहने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने जो है वो गोया औरतों को दबाया है और मेल डोमिनेंस दिया है। अब ये कहां तक सही है, कितनी सच्ची बात है, या इसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा है? पूरा ईसाइयत और जितने भी चीजें हैं ये हकाइक से ज्यादा प्रोपेगेंडे पर चलते हैं। इनके हकीकतों को अगर आप पढ़ें तो कहेंगे कि ये तो मजहब भी कहलाने के काबिल नहीं है, और जो दूसरे हैं उनके तो उसूल ही नहीं है, और तीसरे जो है वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इससे ज्यादा उनको फलसफा जिंदगी ही नहीं है। तो जो लिबरल्स हैं और अथीस्ट हैं वो तो फैमिली सिस्टम वो चाहते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल आजाद चाहते हैं हर चीज का। तो अब क्या ये बात सही है? थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे कि इस्लाम आते ही, वैसे तो इस्लाम पहले से यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन इस्लाम का मॉडर्न वर्जन या कंप्लीट वर्जन, फाइनल वर्जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है, खातिमुल अंबिया हैं आप। तो आपके आते ही औरत का जो मकाम मिला है वो मकाम कभी भी किसी सोसाइटी ने, किसी ने भी नहीं दिया कहीं भी, सिर्फ इस्लाम में है वो। और वही इसीलिए इस्लाम में 4 औरतें पहले से 4 औरतें कामिल हुई हैं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम और फिर हजरत खदीजा और हजरत आयशा, हजरत फातिमा और आयशा। तो ये आते ही आपको देखें, अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ें, उनका मकाम पढ़ें, उनके जो चीजें देखें तो बिल्कुल उसके मुखालिफ है जो कुछ आज देखा जा रहा है। वो क्यों है? वो या तो जो आज मौजूदा सोसाइटी में जो भी चीजें नजर आती हैं, या तो इस्लाम को न जानने की वजह से, या इस्लाम पर अमल न करने की वजह से। वरना हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ी आप देखिए, वो मर्दों को फतवे दिया करती थी और जो है सहाबा उनसे पूछा करते थे, और तमाम चीजों में जिंदगी की उसमें शामिल होती थी। तो ये सारी चीजें हमारे पास पहले से मौजूद है। दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी कायम करने वाली कौन है? करने वाली कह रहा हूं मैं, करने वाला नहीं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहां कायम हुई? हाँ? यूरोप अमेरिका में कहेंगे हम लोग, बनारस में। ये तो हिंदू मिथोलॉजी है, वो जो कहते हैं वो हिंदू मिथोलॉजी में हुई, वो उनके यहाँ तो सारी मिथोलॉजी की है, रियलिटी में हुई नहीं। बनारस में कुछ था नहीं, राम था नहीं, ये तो एक डिबेटेबल इशू है। खैर, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है मराकश में, मोरक्को, अल मगरिब जिसे अरबी में कहा जाता है, फातिमा अल फहरिया, उन्होंने जामे अल कज़वीन उसका नाम है, एक मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद बनाई और वहां सबसे पहली यूनिवर्सिटी, यानी जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, यानी मुख्तलिफ स्ट्रीम और मुख्तलिफ सब्जेक्ट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, वो सब जो है वहां से शुरू होता है। और फिर जो है जामिया अज़हर हमारे पास है। तो कौन शुरू करने वाली? आप सबसे बड़ी मलिका या जो है ये कहिए कि इस्लाम की तारीख की कौन है? जुबैदा का नाम सुना है? ये भी एक मसला है कि हम किसको पढ़ते हैं। ये यहाँ से एक जो, चूंकि आप ट्रेनिंग में और इसमें हैं, तो हमारे जो आइडियल्स हैं, आइडियल के बदलने से पूरा कंसेप्ट बदल जाता है। अगर हम आज की क्या कहें उनको, रियल लाइफ की जो स्टार्स हैं, उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ेंगे ना, अल्लाह ना करे, वैसे आम लोग वो पढ़ते हैं, ठीक है, इस्लामिक सिस्टर्स उसको नहीं पढ़ती, लेकिन एक ये कुछ भी ना पढ़े तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सहाबियात की जिंदगी, फिर उसके बाद ताबियात की जिंदगी, एक साहब ने रिसर्च करना चाहिए कि चलो, वो भी खुद ये सोच रहे थे हदीस की, सिर्फ वो औरतें जिन्होंने हदीस को रिवायत किया है, नरेशन किया है हदीस का, तो सोचा कुछ लोग मिल जाएंगे, 10, 20, 50, 100 रिसर्च करना चाहे। पता है कितने वॉल्यूम में उनकी किताब है? 50 वॉल्यूम जी। ऑक्सफोर्ड में अगर हमने 50 वॉल्यूम में, ये सिर्फ एक फील्ड है नॉलेज की, जिसमें जो है औरतों का किरदार। तो जुबैदा, मैंने खुद उनकी वो नहर देखी है कि जुबैदा थी कहाँ, बगदाद में, और नहर बनवाई मक्का में हाजियों के लिए। आज तक भी उसकी जो है ईंटें वगैरह और कहीं कुएं वगैरह कुछ मौजूद है। तो ये मामूली चीजें हैं, यानी ये बताता है हमें कि हमारा जो आज मौजूद है वो ऐसा नहीं था, और ना ही ये इस्लामिक कंसेप्ट है। कंसेप्ट और भी आप चलते जाइए तो एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। हमने अरबों में भी देखा है कि आज भी अरब औरतें तमाम प्रोजेक्ट खुद चला लेती हैं। औरतों के लिए सारे स्कूल और जो ऑर्गेनाइजेशंस, और आप नाम लें और वो लोग उनके पास मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि हम जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न कौन से, यानी मॉडर्न इनेमी ऑफ इस्लाम, मुसलमानों के, वो लोग ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि वद्दू लव तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा। वो ये चाहते हैं कुरान की ज़बान में कि तुम भी कुफ्र करो जैसे उन्होंने कुफ्र किया है, फिर बराबर हो जाए। और एक आयत में है कि जो यहूद व नसारा हैं वो ये चाहते हैं कि कुफ्र करें, हसदम मिन इंद अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक। उनके पास हक आ जाने के बाद, समझ जाने के बाद, वो हसद की वजह से कि तुम्हारे पास ये दौलत कैसे आ गई, तुम्हारे पास ये इस्लाम जो है, ये उसूल, ये प्रिंसिपल, ये इतनी अहम चीज, ये क्यों है? इस हसद में वो दूसरे नाम लेकर जो है, सारे नाम लेकर ये चाहेंगे कि हमको इस रास्ते से हटा दें। तो आज दुनिया में सबसे बड़ा हमला जो होता है वो ये, आप देखिए कि ये कहते हैं कि औरत के हुकूक, सऊदी अरब में औरत जो है ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो नहीं चला सकती, वो नहीं चला सकती, जबकि
جب ہم ریئلٹی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو عورتیں شاید وہاں سے زیادہ کہیں بھی آزاد نہیں. تو آزاد ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ بیکار پھریں. آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فکر میں آزاد ہو, آپ اپنی رائے میں آزاد ہوں, آپ اپنے دین میں آزاد ہوں, آپ جو ہے اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہوں, آپ اپنے گھر میں آزاد ہوں, آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ باہر نکلے تو کچھ ہو جائے گا. ہم اپنی فیملی کو دمام سے اور مکہ تک لے جاتے, تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے, اپنی گاڑی میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہوتا, بچے, فیملی, اور کہیں ذرہ برابر بھی پوری سوسائٹی میں یہ ڈاؤٹ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ ہو جائے. جہاں چاہا وہاں روک کر گاڑی نماز پڑھ لی, جہاں چاہا وہاں رک گئے, وہاں کھانا کھا لیا. تو یہ صورتحال. اور اس کے باوجود اگر پروپیگنڈا دیکھیں اور میڈیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ بس سب سے زیادہ مصیبت یہی ہے. اور میں نے چونکہ سارے نان مسلم ان کے اوپر بھی کیرلا کی ہماری بہت ساری عورتیں وہاں ہوتی ہیں اور یہ سب ہوتی ہیں, تو ان لوگوں سے انٹرویو وغیرہ سب لے رکھے. تو عجیب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت غیر مسلم بھی, امریکن یا انڈین وہاں رہ لیتی تھی تو وہ دوبارہ ان سوسائٹیز کو پسند نہیں کرتی, غیر مسلم ہوتے ہوئے. وہ سکون اور وہ چیز ہے. تو حملہ سب سے بڑا جو اٹیک ہے وہ فیملی سسٹم پر ہے, اور ہمارے جو عورتیں ہیں ان کے اوپر ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جیسے شیطان چاہتا ہے, جیسے جادوگر چاہتا ہے, ایسے ماڈرن شیطان جو شیاطین من الانس والجن دونوں ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو انسانی شیطان یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اسلام چھوڑ دیں, یا اسلام کے اصول چھوڑ دیں, یا موڈیسٹی چھوڑ دیں, پردہ چھوڑ دیں, تو اور ایسی ہو جائیں جیسی ہماری عورتیں ہیں. یہ ان کے کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے, قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر, لیکن جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بڑا, تو ان کے اس سے نکل جاتا ہے. بہت سارے اس کے کانفرنس ہوئی, بہت نہ جانے کیا کیا ہوا. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان کی عورتیں پریشان ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ لیکچر ہو سکتے ہیں, آپ ریسرچ کر سکتی ہیں, لوگوں نے ریسرچ کر رکھا ہے کہ وہ عورتیں وہاں کی یہ سمجھتی ہیں کہ مسلم عورتیں سب سے زیادہ عافیت میں. سب سے زیادہ عافیت میں کون ہے؟ مسلم عورت. وہ یہ کہتی تھی کہ بھئی تم تو ملکہ ہو, گاڑی چلانے والا بھی دوسرا, تمہارا ساری چیزیں جو ہیں تمہیں جو ہے آرام سے ملتی ہیں, آرام سے تم اپنے فیملی اور بچوں کی جو ہے تربیت کر سکتی ہو, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ لوگ, ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں باہر کی ذمہ داری بھی اندر کی ذمہ داری, تو یہ باہر کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ باہر کی ذمہ داری کو پھر اس کو جو ہے کمپلیٹ کیسے کریں. تو اگر ہر عورت کے اوپر باہر کی ذمہ داری آ جائے تو نہیں. اسی لیے وہ اسلام نے جو لمیٹیشن رکھی ہیں, پردے کی لمیٹیشن ہے, وہ لمیٹیڈ اس لیے کہ اگر ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں تو عافیت رہے گی. جتنا کام عورتوں میں بہت بہت کام ہے. کیا ہماری عورتیں جو ہیں وہ خاص طور سے نوجوان عورتیں, ہماری جو وہاں پہ سسٹرز تھی انڈیا کی, کیرلا سے لے کے اور یہاں تک سب اتنی مختلف قسم کی فیملیاں تھیں, تو وہ اپنی نوجوان بچیوں کو جو اسکولوں میں جاتی تھی ان کے لیے کیمپ بھی کرتی تھی, سارے پروگرام کرتی تھی, اپنی فیملیاں بھی چلاتی. تو ان کے لیے جتنا ضروری ہے, جس لمٹ میں رہ کر کرنا ضروری ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن جو ماڈرن زمانے کا جو اسٹائل ہے یا جو وہ اس کی ڈیمانڈ ہے, اس ڈیمانڈ کو آپ کبھی پورا نہیں کر سکتے. اور اگر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے اصول اور اپنے پرنسپل چلے جائیں گے, اور وہ چلے جائیں گے تو آپ یہاں کوئی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دی ہاتھ سے دے کر حاصل ہو جو روٹی ہے, ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور عورت کے ہی دم سے جو ہے, علامہ اقبال تو ایک ایک جملے میں ساری چیزیں کہہ دیتے تھے, اسی کے دم سے ہے زندگی کا سوز درو. اگر زندگی میں کائنات میں رنگ ہے اور زندگی میں کے درد کا درما ہے تو وہ عورت کے وجود سے. تو یہ جو اتنا بڑا کام تھا کہ پوری یہ سمجھیے کہ نسل کی تربیت کرنا
اور یہ جملہ مشہور ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر عظیم کے پیچھے جو ہے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ اور اصل مقصد تو سب کا یہ ہے کہ جنت حاصل کرے. مقصد، کام تو مقصد نہیں ہے نا، ایکشن مقصد ہے. ایکشن کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ ہے نا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے تھوڑی سی چیزوں میں یہ رکھا ہے کہ وہ یہ کر لیں گی تو اتنا وہ، جس نے نماز پڑھ لی، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی، اور ایک اور ہے تو 3 چیزیں کر لی تو وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے چلی جائے. تو یہ معمولی چیز ہے لوگ جو ہے اس کے لیے. اور یہ آپ یورپ و امریکہ کی عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہونے والی ہیں. اگر وہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اس میں 70% کا ریشیو عورتوں کا ہے. تو وہ تو اس ماڈرن لائف کو چھوڑ رہی ہیں، اور ہماری عورتیں ہمارے ساتھ ایک پکڑ رہی ہیں. ایک مہمان آئے امریکن، وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ میں نام نہیں لوں گا، اس کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ وہاں کون سا ہالی ووڈ ہے اس کے سپر اسٹار، اور اس کو اللہ نے توفیق دی اور مسلمان ہوا. تو اس نے ایک بات بتائی، بنگلور کے ایک اسٹریٹ پہ تھے ہم، کہ صداقت آج جو حال تم لوگوں کا ہے نا، یہ ہمارا 1960 میں تھا. ہم لوگ ادھر سے چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور تم لوگ جو ہے ادھر اس کچرے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ آ رہے ہیں اسلام میں. آپ اس ٹائم پر برطانیہ میں 4-5 عورتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے بہت عظیم کام کر رہی ہیں. اس میں ایک ایون نڈلی ہے، تو نام سنا ایون نڈلی؟ ایون نڈلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اخبار کی بہت بڑی جرنلسٹ تھی، جو طالبان کے پچھلے زمانے میں جب ان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اس زمانے میں وہ چھپ کر کے افغانستان میں وہ کرنے آئی تھی رپورٹنگ، اور وہ پکڑی گئی، جیل میں رہی. طالبان کی درندوں کی، جن کو کہتے ہیں، ان لوگوں کی جیل میں رہی، اور وہ درندوں کی جیل سے مسلمان بن کے نکلی. تو اس کی پوری داستان یوٹیوب وغیرہ میں بھی پڑی ہوگی. وہ اتنی زبردست کام کرنے والی لیڈی ہے. اس کے بعد سے اس نے دعوت کا اور دین کا ہی کام شروع کر رکھا ہے. اور وہاں کا ٹونی بلیئر ایک تھا پہلے وہ جو گزرا ہے، اس کی سالی ہے، وہ بہت ہی اسٹرانگ مسلم ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے غزہ کے لیے، جب پہلے غزہ میں جنگ ہوئی تو ان لوگوں نے وہاں سے پورا ویلفیئر کا کام انہوں نے وہاں سے کرایا، جہاز لے کر آئے. تو دین جو ہے کامیابی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے اس ٹائم پر، خاص طور سے ہماری بہنوں کی، کہ جو مسئلہ چل رہا ہے فیملی کے اوپر اور پردے کے اوپر اور حیا، موڈسٹی کے اوپر، کیونکہ حیا وہ چیز ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے، دفعت الحیا فقال ما شئت، تو اس کا جو ہے کاؤنٹر صرف یہی کر سکتی ہے. ان کو کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی جو نوجوان بہنیں ہیں ان کے لیے تربیتی پروگرام بنانے ہوں گے، اور ایسے پروگرام بنانے ہوں گے کہ جو ان بچیوں کو جو انٹرنیشنل یا کسی بھی انگلش اسکول میں کسی بھی میڈیم میں پڑھ رہی ہیں، خاص طور سے انگلش میڈیم میں، تو ان کو اسلام کی طرف لائیں. کیونکہ عافیت اس میں، عافیت اور ترقی بھی اسی میں. عورت کی ترقی جو ہے کسی دوسرے نظام میں نہیں ہے. سب نے کر کے دیکھ لیا، کسی کے یہاں تو ہے ہی نہیں. یعنی مثال کے طور پر ان کے یہاں تو پہلے سے ہی عورت کا کوئی مقام نہیں ہے. ابھی جو کچھ اگر یہاں انڈیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ ویسٹ کی نقل ہے. ایسے وہ جو ہے ان کو کاپی کر رہے ہیں، تو وہ ان کا تھوڑا ہی ہے، نہ ان کے مذہب کا ہے، کسی بھی اس کا نہیں. عیسائیوں کے یہاں بھی کوئی وہ نہیں ہے. کس کے یہاں آپ رشیا، چائنا، ان میں چلے جائیں، وہاں کوئی نہیں. تو مسئلہ جو ہے صرف اسلام کا ہے. اسلام میں یہودیوں کے یہاں تھوڑا بہت تھا، اس میں بھی ان کے بھی اب ایک سیکشن میں موجود ہے. اسی طریقہ کا پردہ کرتی ہیں یہودی عورتیں، لیکن اب ایک چھوٹا سا ایک مائنورٹی رہ گئی ہے
یہودیوں میں جو پردہ کرتی ہیں, جو دین کو فالو کرتی ہیں اپنے, باقی دوسرے کسی اس میں نہیں. تو مسئلہ سب سے بڑا ہمارا ہے, اور ہمارا بھی اس لیے نہیں ہے کہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے, نقصان اس کو ہوگا کہ جو اس دین کو چھوڑے گا یا اس سے دور جائے گا یا اس کے اصولوں سے دور جائے گا, تو اس کا نقصان ہے. دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم چھوڑ دیں گے, دوسرے پکڑ رہے ہیں, یورپ والی عورتیں پکڑ رہی ہیں, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ترکی عورتیں جن کو زبردستی جن کے حجاب اتارے گئے تھے, جن کو جو ہے جن کے اوپر 50 نہیں بلکہ تقریباً 80 سال تک یہ محنت رہی کہ وہ یورپین بن جائیں, آج ان عورتوں کا, جن کے ایک زمانے میں وزیر اعظم صاحب اپنی بچی کو دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے کیونکہ وہ حجاب پہنتی, ان کے یہاں قانون کے حساب سے حجاب پہننا ممنوع تھا, کالج میں نہیں جا سکتی تھی صرف اسکارف پہن کے. اور آج کیا حال ہے؟ لوٹ آئی, عافیت وہیں ملی 100 سال میں, لیکن اس 100 سال میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہوگا. تو ہمیں ہماری اس سوسائٹی کو ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچانا ہے, اپنی بچیوں کو بچانا ہے, اور جو ہے اپنا فائدہ کرنا ہے اور اپنی قوم کا فائدہ کرنا ہے, متحد ہو کر کرنا. جب تک ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر, جب تک ہم جو ہے متحد ہو کر کام نہیں کریں گے, 4 سسٹر مل جائیں 5 سسٹر, ایک بہت بڑی طاقت. اپنے اسے انکم سورسز وغیرہ سب ریسورسز, کیونکہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے, متحدہ طور پر جو ہے خرچ کر سکتے ہیں. عورتیں ہماری بہنیں جو ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے مردوں سے زیادہ جو ہے چندہ لے کر آتی, مردوں سے زیادہ. کیا جنت کے جو درجات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. جنت کے درجات جو ہیں وہ سب کے لیے, اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو یہ میری گزارشات ہیں, صرف کوئی لیکچر دینا تو مقصود نہیں تھا. آپ لوگ اگر اس میں سوالات بلکہ اپنی کچھ فیڈ بیک رکھنا چاہتے ہوں تو وہ اور زیادہ بہتر رہے گا. کچھ سوالات ہوں, کچھ اس طرح کے جو ماڈرن اس میں ہیں کہ کیا کیا جائے یا کس طرح کیا جائے, یا جیسے آپ ڈسکس ٹائپ کا ایک بہتر ہے. میرا ایک کوشچن ہے, جیسے جو کام کرتے ہیں کچھ عورتوں کا, جیسے میں اگر اس کی بات کروں, جو میں لاسٹ سیشن میں نے اور لوگ کے ساتھ کیا تھا, تو ان کی جو کمیونٹی ہے, مطلب یہ کمائی پہ نہیں ہے, یہ کمیونٹی وائز کے اوپر اپلیفمنٹ ہے. تو وہاں کی جو عورتیں ہیں, وہاں کا جو اپلیفمنٹ ہے, مطلب عورتوں کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے, وہ باقی ہم لوگ کی کمپنیز میں نہیں ہوتا ہے اتنا. تو اگر عورتوں کو تو موٹیویٹ رہتی ہیں, لیکن اگر وہاں جتنی بھی عورتیں آئی تھیں وہ لوگ اپنے ہسبینڈ سپورٹ سے آئی تھیں, تو عورتوں کو سیشنز کے لیے بہت ساری آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر دیتی ہے, پیرنٹس ادھر ادھر سے دوسری لیڈیز بھی کر دیتی, لیکن مردوں کی کنڈیشننگ کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے. مطلب ان لوگ کو بھی عورتوں کو کچھ بتانا, ان لوگ کو الاؤ کرنا, کیونکہ مین اگر عورتوں کی یہاں کمی ہے تو آنا تو بہت سی چاہتی تھی, لیکن گھر کی ذمہ داری یا پھر مردوں کا ریسٹرکشنس رہتا ہے, اس کے لیے کیا کیسے کر سکتے, کیونکہ کچھ سمجھانا پھر اس کا الگ امپیکٹ ہو جانا. صحیح. اس میں آپ کے اس میں 2 چیزیں ہیں سوال میں. ایک سوال تو یہ ہے, یا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپریشیٹ کر رہی ہیں بورا کمیونٹی کے اس کو, ایک چیز کو پہنچ, اور دوسری یہ کہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ
जितनी कम्युनिटीज हैं, छोटी छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये इनके पास कुछ ऐसे अट्रैक्शन की चीजें होती हैं कि जो आदमी को लगे बहुत अच्छा है, बहुत ही यानी परफेक्ट, किसी चीज में बहुत ज्यादा परफेक्शन होगा, या जो है वो, ये एक मार्केट स्ट्रेटेजी है, सही पूछे, ये सही मानों में मार्केट स्ट्रेटेजी है। और बहुत सारे लोग यहूदियों के उसमें देखिए, क्रिश्चियनों को देखिए, वो ऐसे इस तरीके से पेश करेंगे, नन्स को देखिए, ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा जो है हुकूक का कोई ख्याल करने वाला नहीं है। तो अगर बातिल पर रहते हुए ये इस तरह की चीजें आती हैं तो उसका कोई फायदा उनको नहीं है। तो गैर मुस्लिमों में ऐसा क्या, गैर मुस्लिमों में नहीं है, जो किसी भी किस्म के गैर मुस्लिम हैं, अब बोरा कम्युनिटी हो, शिया कम्युनिटी हो, बोरा शियों के भी वो, उसके अलावा अरबों में भी जो है एक नुसेरी है, लेकिन जब इनका मसला आता है, जो मेन चीजें हैं, बड़ी चीजें, तो बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। यानी मैं आप लोगों के चूंकि यहाँ पर डिफरेंस है तो बयान नहीं कर सकता इनकी दास्तान, हक़ाइक़ क्या है। सबसे बड़ी जो मेन उसूल, जो मेन चीजें हैं, अगर उन पर कंप्रोमाइज कर लिया और ये चार चीजें हो गई तो वो अकीदा सही नहीं है। फिर जो है इनमें जिना का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि वो बहुत भारी तस्वुर हो, और आप लबनान और सीरिया और जहाँ जहाँ भी शिया और ये कम्युनिटीज़ हैं छोटी, एक दरूस कम्युनिटी, कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वो यहूदियों के साथ इम्पैक्ट अपने वो रखते हैं, यहूदियों के साथ मिल के कम्पैक्ट है, उनकी औरतें कैसे रहती है। तो क्या दुनियावी मनफात या जो है तिजारत या ये सिर्फ सब कुछ है? ये बहुत बड़ा मसला है, ये सवाल बहुत हुआ। क्या मर्दों के ऊपर इस्लाम ने जिम्मेदारी नहीं डाली तमाम चीज की? इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि अगर माँ है तो उसका ख्याल कैसे हर हाल में करना है, बहन है, बेटियां हैं, तो कहा कि अगर एक बेटी, पहले तो 3 का कहा, फिर कहा 2, फिर कहा 1 भी हो और उसकी वो करें तो जन्नत। तो ये सारे जो अहकाम हैं ये किस लिए हैं? ये औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मार्केट में लाने का वो नहीं है। इस्लाम जो है इस चीज को नहीं करता प्रमोट, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी उसमें, ताकत में, हर चीज में डिफरेंस रखा है, तो जो जिम्मेदारियां हैं उसमें भी डिफरेंस रखा है। ये जुल्म होगा कि एक कमजोर को जो है ज्यादा काम दिया जाए या डबल काम दिया जाए। तो अल्लाह ताला तो जालिम नहीं है, अल्लाह ताला से ज्यादा कोई हमें समझने वाला नहीं है। तो ये जितनी कम्युनिटी है, ये एक कम्युनिटी नहीं, हर जगह वो उनके जो आपको बहुत सारे उसूल, मर्दों में भी, सिर्फ औरतों में नहीं, ऐसा लगेगा कि देखे ऐसे अच्छी खूबसूरत टोपी पहनेंगे, ऐसे कुर्ते, ऐसे वाइट ड्रेस, ऐसा वो लगेगा इनसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। मैं एक मरतबा बॉम्बे में से गुजर रहा था, जब तक तालिब इल्म था तो पता नहीं था बोरा कम्युनिटी है क्या है, तो उस रोड से गुजरा, कहा सुभान अल्लाह, बॉम्बे में क्या ही खूबसूरत और कितने दीनदार लोग हैं। तो और जब मसला आता है असल, तो मसला ये है कि मिलियनों मुसलमानों का कत्ल करने वाली है यही कम्युनिटी। अभी शाम में क्या हो रहा था आप लोगों ने देखा, 8% है, उन 8% को जो है ईसाई मजबूत करके चला गया, उनके हाथ में सब कुछ दे दिया, तो 80% मुसलमानों को उन्होंने कत्लेआम किया है। कहाँ चला गया सारा कल्चर, और कहाँ चली गई सारी सिविलाइजेशन, और कहाँ चली गई सारी सभ्यता। तो ये इसलिए इसको, ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट, दूसरों से इस अंदाज से मुतासिर होना। दूसरा, अपने यहाँ जो है, ठीक हमारे यहाँ चूंकि कम्युनिटी भी बहुत लार्ज है, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं, और हमारे ऊपर
एंटी हमारे काम भी बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है, आप तो यहाँ की शहजादियां थी, आप तो वो थी, और हम लोग तो वो थे कि जो यहाँ के बादशाह और वो तालीम में हर चीज में आगे थे। आपको पता है 200 साल से तकरीबन जब से अंग्रेज आया उससे पहले से क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये सारे, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी मसला है मर्दों का, वो मसला इस्लाम को न जानने, उससे दूरी और उस पर अमल न करने की वजह से है, इस्लाम की वजह से नहीं, इस्लाम की वजह से नहीं, इस्लाम के उसूलों से दूरी की वजह से। और वो जिम्मेदारी होती है कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह के वो हैं, वो उस पे आए और वो उनके लिए प्रोग्राम करें, ज़हनसाज़ी करें, क्योंकि औरत मर्द की ज़हनसाज़ी नहीं कर सकती, थोड़ी बहुत कर सकती है लेकिन नहीं, वो उससे नहीं लेगा। तो इसीलिए जो है उसूल भी बनाया गया है कि मिसाल के तौर पर शादी जो है वो दीनदार से करो। क्यों? इसलिए कि उसका असर आएगा और असर कबूल करता है आदमी, खासतौर से औरत असर कबूल करती है। तो ये नेचर है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज से दिया। तो इसलिए इस्लाम की वजह से नहीं है, ये इस्लाम छोड़ने की वजह से है। हम उसी के लिए तो कोशिश करते फिरते हैं, उसी तमाम चीज़ों के लिए। और वो मर्दों की जिम्मेदारी है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि इस बारे में भी बोले। और हो रहा है ये तस्हील निकाह जो है, ये एक प्रोजेक्ट, ये मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। इसको कल मैंने मर्दों को बताया इस सिलसिले में कि ये क्यों डीप है और क्या इसकी जरूरत है, और ये सोल्यूशन है। हम सब कह के चले जाएं कि हाँ भाई हमारी फैमिलियों पर अटैक है और मुसलमानों की औरतों पर अटैक है और मुसलमानों की तहजीब और सकाफत पर अटैक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या है, प्रैक्टिकल वो क्या है, और ये कि बिदअतें नहीं होनी चाहिए और रस्म रिवाज नहीं होने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं वो कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। और आप जैसी लेडी माशाल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी हो और तालीम अच्छी दी हो और वो कुछ करना भी चाहती हो, तो ऐसी लेडीज को चाहिए कि अपनी बहनों में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अवेयरनेस का काम करें, लेकिन इस्लाम के जो उसूल हैं उनसे ना। बज़ाहिर जो है बातें बहुत खूबसूरत नजर आता है। ये तो आप लोगों को हदीसें मालूम है कि भाई जब जन्नत पैदा की गई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा गया कि देखिए, अल्लाह इसमें कौन जाने को पसंद नहीं करेगा और जन्नत को तो इसमें कौन जाने को नापसंद नहीं करेगा। फिर उनको मकारे से उनको जो है जन्नत को मकारे से, यानी ऐसी चीजें जिनसे तकलीफ होती है, जिनसे परेशानियां होती हैं, उससे ढक दिया गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा कि मुझे तो डर है कि शायद कोई भी ना जा सके, और उसको जो है उससे तरकीबात से और ख्वाहिशात से और ऐसी चीजों से ढक दिया गया जो इंसान को पसंद आती है। तो इसलिए ये फाइन लाइन हमेशा बहुत जरूरी है मेरी बहन। काम कितना भी करें, इस्लाम जो है तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख को छू लो, आसमान को छू लो, पर एक सुखन बंदा आजिज करे है याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलना। ये अपने इलाहाबादी ने कहा था, बड़े अजीम शायर। उन्होंने औरतें जो पर्दा नहीं करती फैमिली बचाने का, वो उसकी जिम्मेदार हमारी बहनें। जी अच्छा चलिए हम सवाल करते हैं, फिर ऐसा थोड़ा सा है टाइम, 10 मिनट और। आपके हिसाब से क्या प्रोग्राम होने चाहिए नौजवान बच्चियों के? लड़कियों के लिए हिजाब का तो परफेक्ट है हिजाब और पढ़ाई। हिजाब को लेकर पढ़ने का, क्योंकि जैसे जैसे आगे पढ़ाई होती है वैसे हिजाब उतर जाता है, स्टार्टिंग में फैशन ट्रेंड बन जाता है, तो वो हिजाब को लेकर पढ़ना दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, हिजाब को वेरी गुड जी, बाय। हिजाब के साथ पढ़ने के साथ साथ हिजाब के साथ
हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कुछ फ्रेंड्स थी हमारे जी। जो माशाल्लाह कॉलेज में हमसे ज़्यादा पढ़ा करती थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी ऑफिशियल वर्क में जब हो गई तो उनका पर्दा सारा का सारा खत्म, तो वो थोड़ा सा अफसोस तो है। इसीलिए ग्रूमिंग जी। स्कूल के बच्चों के लेवल से स्टार्ट करें, सेम में लड़कों के लिए भी अगर कंडीशनिंग पहले से करे बच्चों में लड़कों में ये तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी बनिस्बत अभी हम लोग मर्दों को बुला के बैठाएंगे तो कोई नहीं आएगा, ये सोल्यूशन है, तो ये ज़्यादा ये सोल्यूशन की तरफ है। यानी हिजाब आप किसी को जबरदस्ती पहना है, ये नहीं हो सकता जब तक दिल न बदले। मैं अब मेरी बच्चियां जो है सऊदी अरब के अरबी स्कूलों में पढ़ी हैं, 2 बच्चियां हैं, तो दोनों सऊदी अरब के स्कूलों में पढ़ी और माशाल्लाह अरबी में उन्होंने अपने स्कूलों को टॉप किया है। और वहाँ जो उनकी तरबियत हुई है वो हिजाब वो करती हैं कि जो कजिन्स है ना उनके सामने भी नहीं आती, और अगर हम कहें तब भी नहीं कर सकती, हमसे सवाल कर लें। तो ये पहले से जो कंडीशनिंग है ये बहुत जरूरी है। यानी वो कॉन्शियसली हिजाब करें, वो जो है उसके अंदर हया का जो एक मादा है वो बाकी रहना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने वदियत रखा है, और उसको खत्म करने के लिए कोशिशें की जाती हैं एलिमेंट्री से ही, शुरू से ही। अगर जब हम अपनी बच्चियों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जो और पैसे देकर भेजते हैं जो हमारे उन लोगों के हाथ में है कि जो हमारी कम से कम ये कह लूं मैं हल्के अल्फाज में कि जो हमारी तहजीब और सकाफत से हमारे कल्चर से मेल नहीं खाते, तो वो क्या करेंगे, डांस सिखाएंगे, मौसीकी सिखाएंगे। वहीं से जब छोटी बच्ची नाचना गाना सीखेगी तो क्या होगा, तो हया खत्म की जाती है। हया जो है औरत के अंदर वदियत रखी गई है, उसके अंदर पहले से रखी गई है। अगर उसकी नर्चरिंग हो जाए, उसको जो है बढ़ा दिया जाए तो वो जो है आखिर तक रहती है। और अगर ऐसा माहौल मिल जाए कि जो माहौल खतरनाक है, जो माहौल जो है उसको, तो उसकी हया खत्म हो जाती है। और जब हया खत्म हो जाती है तो सारी चीजें कुछ भी करें। तो इसलिए ये जो आपने कहा ना कि पहले से इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह का वो हो, सबसे पहला तो यही है कि बच्चियों को अपने स्कूलों में पढ़ाएं, और उसके लिए बड़ों की जिम्मेदारी है। आज हम जो मीटिंग करने जा रहे हैं तो उसमें भी ये है कि भाई ये बदल तो हमें ही देना होगा ना। जब तक हम मुतबादिल नहीं देंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे, तब तक कैसे होगा। तो वो करें, और जब तक ये ना हो तो वहां की बच्चियों को पहले ही उस मराहिल में लाकर उनकी तरबियत की जाए, वैल्यूज उनके अंदर डाली जाए। तो जो कुछ कचरा आ गया है, वायरस आ गया है, उस वायरस को जो है साफ किया जाए, एंटीवायरस लगाया जाए, ये जरूरी। और ये बहुत अच्छा वो है। और सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर लें तो बहुत बड़ा चेंज आ जाए। एक औरत का बिगड़ जाना एक पूरी फैमिली का बिगड़ जाना है, एक माँ का बिगड़ जाने से उम्मत बिगड़ गई। ये कहते थे हम पहला मदरसा जो है माँ की गोद है, और है ही हकीकत ये। उसकी क्या वैल्यूज हैं, जो माँ की वैल्यूज होंगी वो बच्ची में आएंगी, आगे बच्चे में आएंगे। अजीब अजीब वाकयात है। मैं एक साहब जो है कहने लगे, तो कुछ मेरी बातों से मुतासिर हुए, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बच्चियों को फला जगह पढ़ा रहे हैं, हिंदू मिशनरी स्कूल भी है आजकल, तो उसमें पढ़ा रहे थे, और कुछ बातें बताएं तो उन्हें जब समझाया तो कहने लगे ठीक है। मैं वाइफ जो है उनकी किसी भी तरीके से तैयार नहीं हुई बच्ची को जो है वहां से हटा के मुस्लिम स्कूल में भेजने के लिए। तो क्या बनाना चाहती है? एक्चुअली एजुकेशन का जो कल्चर है जिस दुनिया में दुनिया को दीन दोनों को लेके चलना होता है, तो जब मुस्लिम स्कूल्स जो हैं वो एकदम इस्लामिक फॉलो करते हैं, थोड़ा उनका टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अभी भी पीछे है। मतलब इंग्लिश कन्वर्सेशंस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और बच्चे अरबिक क्लासेस मतलब
मदरसा ये सब है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कारी साहब को बैठा देंगे उससे आ जाएगी, हाँ। तरबियत मैं खुद दे दूंगी, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्फिडेंस एक्टिविटीज़ जो होती हैं तो मुश्किल स्कूल्स में ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर आता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के वो ऊपर बात ज़्यादा करें, वहाँ पर वो ज्यादा। इसमें भी दो चीजें, एक तो ये कि इसका भी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा किया गया है, एक चीज। दूसरी ये है कि एजुकेशन क्या चीज है, लैंग्वेज का नाम एजुकेशन, इस पर भी गौर करने की बात है। फिर जो है किस कम्युनिटी को और किस कम्युनिटी के किस हिस्से को कौन से एजुकेशन की जरूरत है ये भी हो। अब मिसाल के तौर पर एक औरत है, वो एजुकेशन हासिल करती है सिविल इंजीनियरिंग की, तो वो कुछ उसमें कुछ कर पाएगी, उसकी चीजों से मैच करता है, वो उसकी जो है नेचर से मैच करता है, नहीं करता। लेकिन वो डॉक्टरी गायनेकोलॉजी बनती है, वहां जरूरत है। वो जो है बेहतरीन टीचर बनती है, उसकी जरूरत है। तो ये किसको क्या देना है ये भी गुड़मुड़ हो रहा है। अब ये बताइए कि एक बच्ची को एक बिल्कुल नॉन मुस्लिम इन्वायरमेंट में अपने घर से 200 किलोमीटर दूर सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने के लिए भेजना कैसा रहेगा? लैंग्वेज की बात नहीं कर रही थी, जैसे मैंने यहाँ पर पंचलों में स्कूल से तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, चलिए सिर्फ लैंग्वेज नहीं, मैं लैंग्वेज में समझा के चूंकि आपने इंग्लिश की बात की थी, और लेकिन हकीकत यही है, लैंग्वेज से ज्यादा नहीं पढ़ते, बहुत कम ऐसे हैं कि जो दूसरे जो असल नॉलेज है और जिसकी जरूरत है उस पे काम होता है, बाकी इसी पे होता है। हम जो है सेंट उसमें जो क्यों भेजते हैं अपनी बच्चियों को, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। हकीकत ये है, माने ना माने इसको, यानी 90% तो ऐसा है। अब उसके लिए, और इसमें थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी है, बहुत अच्छे स्कूल कायम किए गए हैं, लेकिन यूं ऐसा आ गया कम्युनिटी में, ख्याल ये आ गया है कि अगर पढ़ाई कहीं हो सकती है तो वो कॉन्वेंट में ही हो सकती है, ऐसा समझते हैं किसी न किसी हद तक अनकॉन्शियस में। ये कितना भी अच्छा क्वालिटी का आप जो है एजुकेशन दे लो, उसमें इस तरह के मैंने देखे हैं बाकायदा, मतलब मैं यहाँ की एक जगह की बात नहीं, एक जमाना जो है ये था कि मैं पूरे हिंदुस्तान में एज इंस्पेक्टर आया करता था एजुकेशन के फील्ड में, वहां से लेके वहां तक पता है कि किस में कौन से कॉलेज में किस तरह से। तो ये मेन प्रॉब्लम है हमारा। अब उसका भी हम तदारुक कर सकते हैं, उसका जो है उसको हम जो है मुतबादिल पेश कर सकते हैं। हमने सऊदी अरब में इसके लिए ये किया था कि आई इंस्पायर करके एक क्लब कायम किया था बच्चियों को स्पीकिंग सिखाने के लिए, ताकि वो दूसरों के गलत हाथों में न जाए। अपनी बहनें पर्दे वाली, और वो ऐसा इतना बेहतरीन जो है उनको सिखाती थी, और वो कि वो वहाँ जो दूसरे स्कूलों की बच्चियां पीछे रह जाएंगी। स्कूलों में जो तालीम होती है, चंद स्कूल होंगे, बाकी असल तालीम जो लोग उससे करते हैं, और वो भी क्या है, रट्टा मारना है। हमारी यूपी में तो हाल ये है इंग्लिश का कि जैसा सऊदी अरब में इंग्लिश का, अरबों के यहाँ भी इंग्लिश से इतना वो है कि चंद ही लोग सिर्फ जो है वो पढ़ते। तो इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, वो इंग्लिश में नहीं बोल पाएगा। लेकिन इस टाइम पर ट्रेनिंग के जरिए उलमा इंग्लिश में तकरीर करते हैं, उलमा इंग्लिश में तकरीर करते हैं। मेरा पूरा कैरियर जो है इंग्लिश और अरबी के जरिए गुजरा है 20 साल। अब यहाँ आकर उर्दू बोलना सीख रहा हूँ। तो ये हमें जो है इसके जरिए, यानी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कोर्सेज अटेंड करके उनको इसमें लाना होगा, और फिर प्रोपेगेंडा जो है उसको डिबंक भी करना होगा, उसको खत्म करना होगा जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, और मुतबादिल पेश करना होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना होगा। और ये शुरू से ही होता है, अभी मकातिब के जरिए दिया जा रहा है, छोटे मोटे उसके जरिए। तो इस तरह के कोर्सेज भी मैंने अभी वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं, कैंप्स होते हैं, इस तरह के लेडीज के लिए भी किए जा सकते हैं, बच्चियों के लिए किए जा सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए किए जा सकते हैं।
ان میں उनकी जनसाथी उनको पता लगे कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, एजुकेशन का भी मकसद क्या है और किस चीज में कमी है, उस कमी को भी हम पूरी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और कुछ नहीं, बहुत अच्छा है आपकी जो ये राय हैं और जो जिस अंदाज से सोच रही हैं वो किसी दूसरे से सिर्फ मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में हर वो चीज मौजूद है जो दुनिया कहीं भी नहीं। उसूल आप ले लीजिए, मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि किसी के पास कुछ नहीं। एक मरतबा एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें रिटायर्ड जजेस वगैरह और ये थे, नाम नहीं लूँगा, सेंसिटिव इशू है। तो उन्होंने ये था कि भाई कौन से कानून को नाफिज करना है, औरतों के बारे में किस मजहब से लिया जाए, किस उससे लिया जाए। तो वो सब अपनी राय भाई अपने मजहब के हिसाब से उसमें दे रहे थे। एक जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते थे लेकिन संजीदा आदमी, पढ़े लिखे, रिटायर्ड बड़े जो, उसने कहा कि किसी के पास नहीं है सिवाय इस्लाम के पूरा कोड ऑफ कंडक्ट लेडीज के बारे में, औरतों के बारे में, बल्कि सोसाइटी के हर तबके के बारे में अगर किसी के पास है तो वो इस्लाम के पास है। तो क्या इस्लाम नाफिज करोगे? तो उसके पास से करो। लेकिन मसला ये है कि हमारी हालत ये है कि हमारा बिल्कुल उस शख्स की तरह है कि जिसके हाथ में डायमंड हो और वो उसको उसका जानता ना हो कि ये हीरा है, वो पत्थर ही समझ के, और उससे कोई जो है वो क्या कहते हैं उनको बहरूपिए या ठग उससे ले ले कि पत्थर क्या है, मैं तुझे जो है वो कांच कर देगी कितना अच्छा चमक रहा है कि वो क्या होता है जो फेक होता है आर्टिफिशियल हीरा, आर्टिफिशियल हीरा कुछ कहते हैं ना उसको, क्रिस्टल। हाँ, क्रिस्टल का जो है वो दे दे कि आप जो है ये देखिए चमक रहा है। तो बिल्कुल ये मिसाल है। इस्लाम आपको हो सकता है चमकता हुआ नजर ना आए, चमकता जो नजर आए सभी सोना नहीं होता। नजर जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आए सभी सोना नहीं होता। बाखिर दावा